Moving in the story, we'll talk about drought relief. Shivaji Maharaj gave various facilities to drought affected peasants. He used to waive taxes, so the severity of drought was reduced for people in Swaraj. In a drought year, Shivaji Maharaj distributed the grain stored in the state granaries free of cost to the people. He also undertook repairs of various forts and construction of dams, bunds, and canals during drought years. This way, peasants and artisans or balutedars could earn their daily living and did not feel the severity of drought. As the peasant became wealthy, he could afford to buy things like footwear, clothes, etc. This provided work to the artisans. Those who were homeless till then developed the capacity to build their own houses. This in turn provided work to the masons, the carpenters, the blacksmiths, the brickmakers. This is how, along with the peasants in Swaraj, artisans also became happy and wealthy. आगे कहानी में बात करेंगे सूखा राहत के लिए शिवाजी ने क्या क्या किया। शिवाजी महाराज ने सूखा प्रभावित किसानों को कई सुविधाएं दी। वे कर माफ करते थे। स्वराज में लोगों के लिए सूखे की समस्या कम हुई। सूखे के वर्ष में शिवाजी ने राज्य के अन्य भंडारों में जमा अनाज लोगों को मुफ्त में वितरित किया। उन्होंने सूखे के वर्षों में विभिन्न किलों की मरम्मत और बांधों और नहरों के निर्माण का भी काम किया। इस तरह किसान और कारीगर या बलूतेदार अपनी दैनिक आजीविका कमा सकते थे और उन्हें सूखे की गंभीरता का एहसास नहीं होता था। जैसे जैसे किसान अमीर होते गए वे जूते चप्पल कपड़े आदि खरीद पाए। इससे कारीगरों को काम मिला। जो लोग तब तक बेघर थे उन्होंने अपने घर बनाने की क्षमता विकसित की। इससे राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, ईंट बनाने वाले को काम मिला। इस तरह स्वराज में किसानों के साथ साथ कारीगर भी खुश और समृद्धि हुए। Moving ahead in the story, we'll talk about sea trade and other markets. Shivaji Maharaj raised his own independent navy in order to protect his Swaraj well and to establish his rule over the sea adjoining Swaraj. But that was not all. He also had special cargo ships built to promote trade in Swaraj. He developed trade ports like Rajapur. He built a special market on Raigad. He started a separate marketplace at Khet Shivapura near Pune. He developed marketplaces in big towns and roadside villages. A new pet or settlement was established as Pashan near Pune by orders of Veeramata Jijabai. It was referred to as Jizapur. Shivaji Maharaj levied more taxes on goods imported from the outside region to promote trade within Swaraj. He levied more tax on the salt produced in the Portuguese territory, which made it costlier. On the other hand, he reduced the tax on the salt produced in Swaraj so that people could buy it at a cheaper rate. Naturally, it led to an increase in the trade of salt produced in Swaraj. Thus, local trade was encouraged. Shivaji Maharaj made efforts for the growth of trade and industries in Swaraj. He personally made sure that his subjects would not be cheated by the merchants in any way. When he came to know that people are being cheated in the coconut and betel nut trade in Konkan, he warned the सूबेदार of that region. कहानी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समृद्धि व्यापार और अन्य बाजार के बारे में। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज की अच्छी तरह से रक्षा करने और स्वराज से सटे समुद्र पर अपना शासन स्थापित करने के लिए अपनी स्वतंत्र नौसेना का गठन किया। लेकिन यह सब नहीं था। उन्होंने स्वराज में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष मालवाहक जहाज भी बनवाए। उन्होंने राजापुर जैसे व्यापारिक बंदरगाह विकसित किए। उन्होंने रायगढ़ पर एक विशेष बाजार बनाया। उन्होंने पुणे के पास खेड़ शिवपुर में एक अलग बाजार शुरू किया। उन्होंने बड़े शहरों और सड़क किनारे के गांवों में बाजार विकसित किए। वीर माता जीजाबाई के आदेश से पुणे के पास पाषण में एक नया पेठ या बस्ती स्थापित की गई। इसे जीजापुर कहा जाता था। शिवाजी महाराज ने स्वराज के भीतर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बाहरी क्षेत्रों से आयातित वस्तुओं पर अधिक कर लगाया। उन्होंने पुर्तगाली क्षेत्र में उत्पादित नमक पर अधिक कर लगाया, जिससे यह महंगा हो गया। दूसरी ओर उन्होंने स्वराज से उत्पादित नमक पर कर कम कर दिया ताकि लोग इसे सस्ती दर पर खरीद सके। स्वाभाविक रूप से इससे स्वराज में उत्पादित नमक के व्यापार में वृद्धि हुई। इस प्रकार स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिला। शिवाजी महाराज ने स्वराज में व्यापार और उद्योग के विकास के लिए प्रयास किए।
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित किया कि उनकी प्रजा को किसी भी तरह से व्यापारियों द्वारा धोखा ना दिया जाए। जब उन्हें धोखा का पता चला तो उन्होंने उस क्षेत्र के सूबेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि कोंकण में नारियल और सुपारी के व्यापार में लोगों को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने उनको सचेत भी किया। Moving ahead, we'll talk about high regard for women. Shivaji Maharaj had ordered that the women and children in the enemy camp were not be harmed in any way during the period of war. In fact, they were to be treated with great respect. The behavior of Shivaji Maharaj on several occasions set the ideal of how women were to be treated. The Maratha army had marched upon Belawadi in Karnataka to vanquish the fortress there. Malamma Desai, a brave woman, fought a great battle in defense of the fortress. When Shivaji Maharaj came to know about her courage, he called her his younger sister, returned her fortress and villages to her with honor and gave her the title Savitri. आगे बात करते हैं शिवाजी ने महिलाओं के लिए उच्च सम्मान रखा। शिवाजी महाराज ने आदेश दिया था कि युद्ध के दौरान दुश्मन के शिविर में महिलाओं और बच्चों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, बल्कि उनके साथ बहुत सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। कई मौक़ों पर शिवाजी महाराज के व्यवहार ने महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किए जाए इसका आदर्श स्थापित किया। मराठा सेना ने कर्नाटक के बेलवाड़ी में किले पर कब्जा करने के लिए चढ़ाई की थी। मलम्मा देसाई नामक एक बहादुर महिला ने किले की रक्षा के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। जब शिवाजी महाराज को उनके साहस के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें अपनी छोटी बहन कहा, उनके किले और गांवों को सम्मान के साथ उन्हें वापस कर दिया और उन्हें सावित्री की उपाधि दी। Moving ahead, we'll talk about vigilance regarding cleanliness. During the regime of Shivaji Maharaj, measures were taken to maintain better cleanliness in homes and public places. He issued orders telling people to make a fence of the Nirgudi bush around the house to prevent the entry of animals like mice, scorpions, insects and ants. Fumigation was also suggested to destroy the germs that are harmful to health. People were warned not to leave garbage lying on the roads and markets on the fort. If garbage piled up in various places, in spite of all this, it was not to be thrown down the fort. It was to be burnt on the spot, and the ashes were to be used as a manure for vegetables grown in the backyards. Shivaji Maharaj's management of forts, guns and firearms, his navy, protection of the environment, water management, sea trade, markets, cleanliness and hygiene is a guiding force for us even today. कहानी में आगे बात करेंगे साफ सफाई को लेकर सतर्कता। महाराज शिवाजी के शासनकाल स्थानों में घरों और सार्वजनिक चीज़ों पर बेहतर स्वच्छता बनाए रखने के लिए उपाय किए गए थे। उन्होंने लोगों को घर के चारों ओर निर्गुड़ी की झाड़ियों की बाड़ बनाने का आदेश जारी किया ताकि चूहे, बिच्छू, कीड़े और चींटियां जैसे जानवरों का प्रवेश रोका जा सके। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए धूम्रीकरण का भी सुझाव दिया गया था। लोगों को चेतावनी दी गई थी कि वे सड़कों और किले के बाजारों में कूड़ा कचरा न छोड़े। अगर इतना सब करने के बाद भी जगह जगह कूड़ा कचरा जमा हो जाए तो उसे किले के नीचे न फेंका जाए, उसे वहीं जला दिया जाए और राख को पिछवाड़े में उगाई जाने वाली सब्जियों के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाए। शिवाजी महाराज के किलों, तोपों और अग्नियास्त्रों का प्रबंधन, उनकी नौसेना, पर्यावरण की सुरक्षा, जल प्रबंधन, समुद्री व्यापार, बाजार स्वच्छता और आरोग्य आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक शक्ति है। Moving ahead, we'll talk about Hindvi Swaraj. Hindvi Swaraj was a dream of Shivaji Maharaj. Anyone who lived in Hindustan, no matter to what religion or community they belong, was a Hindvi. Their Raj was Hindvi Swaraj. हिंदवी स्वराज के बारे में जानते हैं। हिंदवी स्वराज शिवाजी महाराज का सपना था। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का समुदाय का हो, हिंदवी था। उनका राज हिंदवी स्वराज था। Moving ahead in the story, we'll talk about religious tolerance. The religious policy of Shivaji Maharaj was liberal. In his campaign, he never caused any harm to mosques. If he come across a copy of the Quran Sharif, he would respectfully pass it on to the Muslims. He never hated Muslims simply because they were Muslim. If a person who had changed his religion wished to return to his original religion, Shivaji always helped him. His brother-in-law Bajaji Naik Nimbalkar
was in the service of Adil Shah of Bijapur. Adil Shah made him accept the Muslim faith. Bajaji made Bijapur his home. He lacked for nothing, but he was unhappy that he had changed his religion. One day he made up his mind to come back to his own religion. Shivaji Maharaj welcomed him back in his religion. The story of the Nitoji Palkar is similar. His religion had been changed, but he wished to return to his original faith. Shivaji Maharaj accepted him back into his religion. आगे कहानी में बात करेंगे कि धार्मिक सहिष्णुता। शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति उदार थी। अपने अभियानों में उन्होंने कभी मस्जिदों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर उन्हें कुरान की कोई प्रति मिल जाती है तो उसे नष्ट नहीं करते थे। वे इसे आदरपूर्वक मुसलमानों तक पहुंचाते। उन्होंने मुसलमानों से केवल इसलिए घृणा नहीं की थी कि क्योंकि वे मुसलमान थे। यदि कोई व्यक्ति जिसने अपना धर्म बदल लिया था अपने मूल धर्म में वापस लौटना चाहता था तो शिवाजी हमेशा उसकी मदद करते थे। उनके बहनोई बाजाजी नाइक निम्बलकर बीजापुर के आदिल शाह की सेवा में थे। आदिल शाह ने उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। बाजाजी ने बीजापुर को अपना घर बना लिया। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वे अपना धर्म बदलने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने अपने धर्म में वापस आने का मन बना लिया। शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने धर्म में वापस स्वागत किया। नेताजी पालकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनका धर्म बदल गया था, लेकिन वे अपने मूल धर्म में वापस लौटना चाहते थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें वापस अपने धर्म में स्वीकार कर लिया। लेट्स मूव अहेड इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज विच इज कॉल्ड शिवाजी छत्रपति. This story is going to be end with this particular paragraph. So the last para of this particular series is remember him. Shivaji was a torch bearer in the dark night of slavery, a fighter who got the better of all difficult situations, who slowly but surely increased his strength while giving fight to powerful enemies, who encouraged his comrades and fooled his opponents, and in the end achieved his goal. He was a model son, a cautious leader, a skilled organizer, a benevolent administrator, a clever military strategist, a great warrior, a terror to the wicked, a defender of the good, and an epoch maker. When one sees all these brilliant facets of his personality, one cannot but say to oneself, bring to memory his wonderful image and remember his great achievements. अब हम बढ़ने वाले हैं आखिरी भाग में, जो कि इस सीरीज का लास्ट भाग होगा, जो कि शिवाजी महाराज के बारे में बताया जाता है. ठीक है, चलो जानते हैं. उन्हें याद रखें, शिवाजी एक थे गुलामी की अंधेरी रात में मशाल वाहक एक योद्धा, परिस्थितियों को पार किया पाया, जिसने शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ते हुए धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी ताकत बढ़ाई, जिसने अपने साथियों को प्रोत्साहित किया और अपने विरोधियों को बेवकूफ़ बनाया और अंत में अपना लक्ष्य हासिल किया. वो एक आदर्श पुत्र, एक सतर्क नेता, एक कुशल आयोजक, एक परोपकारी प्रशासक, एक चतुर सैन्य रणनीतिकार, एक महान योद्धा, दृष्टि के लिए आतंक, अच्छाई का रक्षक और एक युग निर्माता था. जब कोई उनके व्यक्तित्व के इन सभी शानदार पहलुओं को देखता है तो वो खुद से कहे बिना नहीं रह पाता कि उनकी अद्भुत छवि को स्मरण करे और उनकी महान उपलब्धियों को याद करे. जय शिवाजी महाराज, जय भवानी, जय शिवाजी, शिवाजी महाराज की जय. इसी के साथ ही इस सीरीज़ को हम एंड करेंगे और मिलेंगे अगले सीरीज़ में. आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए. मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को. बाय, टेक केयर. जय शिवाजी.